Hello students, welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain Alga 10 worksheet number 2. The topic is Raksha Bandhan. Raksha Bandhan is also known as Rakhi Purnima, which is a Hindu festival celebrated between brothers and sisters. On this day, all sisters tie a sacred bracelet or the Rakhi on their brother's wrist as a symbol of protection from all evils. The brothers in return promise their sisters to be their protectors for their entire life and give a return gift. Rakhi is considered to be the symbol of love and unity. As per Hindu mythology, in ancient time, it was not celebrated between the siblings. In fact, the festival was celebrated between the husbands and wives. This festival started from the story of Lord Indra and his wife Sachi, who tied Rakhi to save her husband from the evil king Bali. In ancient time, it was celebrated between the couples. Still, with time, it extended to the siblings, where the brothers shall protect the sisters from all evil, and equally, the sisters shall protect their brothers from all evils. Raksha Bandhan is a Hindu festival, but it is also celebrated in other countries like Nepal, UAE, Mauritius, etc. Different people celebrate the festival in different ways as per their wishes. Some people wear new clothes and prepare different dishes, etc., to celebrate the occasion. Also in India, people of other communities celebrate the festival with dedication. स्टूडेंट्स, ये रक्षाबंधन के ऊपर एक पैसेज था. इस पैसेज में रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ब्रदर्स के कलाई पे राखी बांधी जाती है, फिर वो हमको रिटर्न गिफ्ट देते हैं, और ये प्रोसीजर कब से शुरू हुआ, कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, हम क्या कपड़े पहन रहे हैं, डिशेस बनाते हैं नई नई, हमारी विशेस क्या क्या होती हैं, और पूरे इंडिया में इसको किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है. इस टाइप के पूरे टॉपिक्स के आंसर्स आपको इसमें मिलेंगे. ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस इस पर डिपेंड है, उनको हम सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ए, ऑल द सिस्टर्स tie the rakhi on their brother's wrist as a symbol of protection from all evil. Take the option that has the same meaning as the underlined word. सेम उसी तरह हमें करना है, अंडरलाइन वर्ड को ध्यान से देखना है और उसका एक्यूरेट मीनिंग आपको टिक करना है. ठीक है, प्रोटेक्शंस, उसका आपका एक्यूरेट मीनिंग रहेगा सेम, सेफ्टी. ओके, बी क्वेश्चन. Rakhi is considered to be the symbol of love and unity as per Hindu mythology. What do you think is the meaning of the underlined word? इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर है. मैथोलॉजी का सेम मीनिंग क्या होता है? वेरी ओल्ड स्टोरीज एंड बिलीव्स कंटेन इन दैम, है ना. सी, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ? आपने पैराग्राफ को 3 से 4 बार रीड किया, इससे आपका जो रीडिंग स्किल है वो भी डेवलप होगा, और जब आप उसको 3 से 4 टाइम रीड करेंगे तो आपको उस पैसेज और पैराग्राफ के बारे में ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा कि आंसर आपको स्पीडली कैसे देना है. तो इसका आंसर रहेगा, द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इज द ब्रदर्स शैल प्रोटेक्ट द सिस्टर फ्रॉम ऑल ईविल. आप लोग के आंसर्स कुछ अलग भी हो सकते हैं, बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज. ओके, क्वेश्चन नंबर डी. What do you learn from the paragraph? We learn from the paragraph that Rakhi is a protection from all evils. E, do you think this paragraph has a suitable title? Explain why or why not. Yes, रक्षाबंधन तो सुटेबल टाइटल है, इसके अलावा तो शायद हम कुछ और नहीं दे पाएंगे. यदि आप दे सकते हो, यू कैन राइट. बिकॉज राखी इज कंसिडर्ड टू बी द सिंबल ऑफ लव and unity as per the Hindu mythology. F, what kind of rakhi do we use? Imagine that you have only a stone rakhi. What would you do? We use different type of rakhi.
हम लोग राखी तो अलग अलग तरीके की यूज़ करते हैं, जिसे जैसी पसंद आ जाए, है ना। तो मैंने कुछ लिख दिया है इसमें अपने मन से, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लाइक गणेश राखी, फ्लावर राखी, कुंदन राखी, etc. If we have stone rakhi, we will tie stone rakhi to our brothers. Okay. So next question जी, use the following words to make meaningful sentence. ये भी बहुत इजी है। आपको इस वर्ड्स को आपको पैराग्राफ में देखना है कि ये वर्ड कहाँ आ रहा है, और जहाँ पे ये वर्ड आ रहा है उसका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का सेंटेंस आप लिख दीजिए, तो आपका तो हो गया, मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। तो मैंने ऐसे ही लव का लिखा है, राखी इज़ द सिंबल ऑफ लव। सेकेंड, क्लॉथ, सम पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द नाउन फ्रेजेस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ए, अ हैप्पी मैन वॉज ड्रिंकिंग टी। तो यहाँ पर नाउन फ्रेजेस क्या है, हैप्पी मैन। बी, द ब्लू टेबल स्टैंड्स ऑन 4 legs। तो यहाँ पर टेबल नाउन है और टेबल कैसी है, ब्लू, इसीलिए नाउन फ्रेजेस क्या हो गया, ब्लू टेबल। C, I am making a delicious salad. Salad is a noun and delicious is a phrase. तो यहाँ पर delicious salad is a noun phrase. Next question number 3. Write the male and female nouns for the given common nouns. अब कॉमन नाउन एग्जाम में आएंगे, उससे ही रिलेटेड आपको मेल और फीमेल नाउन लिखना होंगे। तो जो पॉलिस है उसका क्या हो जाएगा, मेल पॉलिसमैन, और फीमेल पॉलिस वुमेन। फॉक्स का हो जाएगा मेल फॉक्स, फीमेल विक्सन। डक मेल ड्रैक, फीमेल डक। कैटल मेल बुल, फीमेल कप। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन किया था कलेक्टिव नाउन क्या होती है। ये एक ग्रुप्स रहता है, या एनिमल का, या पर्सन का, या थिंग का, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ग्रुप्स की ही बात करनी है। ये आपको याद करना पड़ेंगे सारे ग्रुप्स को, जो कि आपकी रीडर में दिया हुआ है, ठीक है। ए नंबर में है, ए डैश ऑफ डांसर्स परफॉर्म यस्टरडे। तो डांसर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ट्रुप। बी, ए डैश ऑफ लॉयंस एट अ डियर। लॉयन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्राइड। सी, काव्या एंड आई एट अ ऑफ ब्रेड। मतलब बहुत सारी ब्रेड के जो ग्रुप रहते हैं, इकट्ठी ब्रेड रहती है, उसको क्या बोल देते हैं, लोफ। ओके। नेक्स्ट वर्कशीट 2, क्वेश्चन नंबर 1, लर्न एंड राइट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पर एग्जाम में आपको स्पेलिंग ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखी रहेगी, आप इन स्पेलिंग्स को लर्न कीजिए। जब हम स्पेलिंग को बोलेंगे तो आप उसको सुनकर लिखेंगे, इट मीन्स लाइक अ डिक्टेशन। तो मैंने इस तरीके से स्पेलिंग्स लिख दी हैं और आपने भी लिखी ली होंगी। वर्ल्ड, रिलीजन, ड्रैगन, सीमेंट, ऑल्दो, समथिंग, बैगर, हिंदू, पीस। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स में वर्ड दे रखे हैं, आप उस वर्ड को देखेंगे और सेंटेंस पे फिट करेंगे। माय अंकल हैज़ अ पैट। अब पैट क्या होता है बेटा, कोई पालतू चीज़ ही होती है ना। पैट क्या होता है, कोई पालतू चीज़ होती है। कैनल, डियर, ब्लू, तो कैनल और ब्लू तो नहीं होगा, डियर होगा, मतलब कोई जानवर। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, डियर। डियर दैट वाज वेरी डियर टू हिम। देखो यहाँ पर सेम हो रहा है, होमोफोन्स हो रहा है ना, स्पेलिंग बस अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, डियर एंड डियर। सेकंड, द स्काई वॉज, स्काई कैसा है, कलर बताना पड़ेगा क्योंकि वो डियर तो हो नहीं सकता है, कैनल तो हो नहीं सकता है, इसलिए स्काई वॉज ब्लू। तो इन सेंटेंस में हल्का सा कॉमन सेंस लगाएंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। डॉग, अब डॉग की बात आ रही है तो डॉग कहाँ रहता है, डॉग तो कैनल में रहता है, उसके भी घर का एक नाम होता है ना, जैसे काऊ का शेड होता है, वैसे ही डॉग का क्या होता है, कैनल होता है। तो डॉग्स वर केप्ट इन डैश आउटसाइड द हाउस। तो डॉग का आंसर आएगा कैनल। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द करेक्ट होल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन ब्लू। अब इसमें भी सेम आपको वैसी ही ट्रिक यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वी शुड डैश कीप आर सिटीज क्लीन। अब हमको अपनी सिटी को क्लीन रखना है, कैसे, कलर से रखोगे, सुबह सुबह रखोगे, या फिर ऑलवेज रखोगे। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा वर्ड फिट बैठ रहा है, ऑलवेज।
आपने ऑलवेज लिख दिया। माई केट वेक्स मी अप, अब यह वेक यानी उठने की बात हो रही है, तो जब भी हम उठने की बात करते हैं और मॉर्निंग की बात करते हैं तो अर्ली ही उसका आंसर आता है, ठीक है। तो आपको उसके साथ अर्ली लगाना है। माई केट वेक्स मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। थर्ड नंबर, अब देखिए, आई हैव अ पेंसिल दैट इज़ ग्रीन। अब ग्रीन तो कलर में आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी कलर है, इसलिए आपने ग्रीन के साथ कलर को यूज़ कर दिया, तो ये भी करेक्ट हो गया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। राइट ए पैराग्राफ 10-12 सेंटेंस ऑन द टॉपिक माई फेवरेट गेम। देखो, सब बच्चों का फेवरेट गेम अलग अलग होता है, किसी का क्रिकेट होता है, किसी का बैडमिंटन रहता है, किसी का चेस रहता है, किसी का कैरम रहता है, किसी का फुटबॉल रहता है। मैंने यहाँ पर फुटबॉल ले लिया और आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। इसको एक बार मैं रीड करती हूँ। इट इज़ वेरी ईजी, बहुत ईजी बनाया है मैंने, आप भी अपने तरीके से कुछ और बना सकते हैं। फर्स्ट इज़ my favorite game is football. 2. I have to play football every day in the evening time. अगर आप in the evening time नहीं लिखना चाहते तो उसको आप skip कर सकते हैं। 3. I used to play football with play friends. 4. I also watch football matches on TV. 5. I like to play football very much. 6. And now it becomes my passion. 7. I would like to be a great footballer. 8. My father supports me a lot in my passion. 9. Football is played between 2 teams. 10. Last. Each team consists of 11 players. Okay? I hope my students you have understand this worksheet very well. So please do practice at home. Thank you very much. Bye-bye. Take care.